All right, a friend of an enemy is not a friend. And I think India has very clearly established that with Turkey. In fact, all trade now with Turkey is soon coming to a halt because this was the same country that once India saw as a friend, not the friendship that came in from that side. India, in fact, was steadfast in ensuring COVID vaccines reached Turkey when they were in need. But well, the Operation Dost that India had carried out, offering a lot of help even during natural disaster that happened in Turkey recently, there was such aid that was sent out. Turkey has shown absolutely no gratitude. Well, let me take you through our Indian traders at this point taking a stern stand that they are not going to associate with Turkey and with Azerbaijan. So the Confederation of All India Traders, which is the CAIT, has said that final decision will be taken at National Conference in New Delhi. The move follows both countries' public support for Pakistan, like I did mention after the Pahalgam attack when India, of course, ensure it was a retaliatory act from India after the Pahalgam massacre from Pakistan. We're looking at Turkey now showing all its support, saying that we will forever be the best of friends, entirely ignoring the fact that India was at the receiving end. Pahalgam massacre, about the cross-border terrorism that has happened over the years. It seems like Turkey's allegiance is quite well established. So why should India do any business with a friend of an enemy? Now, according to CAIT, India has exported goods worth $5.2 billion to Turkey between April 2024 and Feb 2025, down from $6.65 billion the previous year. Now, imports from Turkey also saw a slight dip, standing at $2.84 billion this financial year. Now, the impact is already being felt on the ground as well. Marble traders in Mumbai have announced that they are going to completely stop trade with Turkey. They're, of course, at this point saying, why should we not encourage Indian-made marble more? Made in India, let's give our own people here opportunities and let them grow. The impact is already being felt on the ground extensively. Similar resolutions have also been passed across these marble trader associations in Rajasthan and Delhi. Let me tell you, almost 70% of marble that used to come into India was largely from Turkey. The precious Turkey marble was a sought after business. Well, too bad for them. They've lost out on the Indian market. मैं आपको बताता हूं ये इटालियन मार्बल है। ये इटालियन मार्बल पहले इटली से आता था और इसकी बड़ी मांग थी मुंबई के कॉरपोरेट जगत में, मुंबई के होटल व्यवसाय में, मुंबई के जो बिल्डर व्यवसाय में। और ये इटालियन मार्बल थोड़ा महंगा पड़ता था, जिसके बाद यहां पर ये तुर्की का मार्बल आने लग गया और सेम टू सेम इटालियन फिनिश, सेम टू सेम इटालियन लुक और रेट में ये इटली के मार्बल से सस्ता पड़ता था, जिसकी वजह से जो भारत के व्यापारी हैं, मुंबई के व्यापारी हैं मार्बल के, वो टर्की के मार्बल को लेना शुरू कर दिए। टर्की का व्यापार बढ़ा, लेकिन टर्की की जो उसकी अंदरूनी, जो उसकी कह सकते हैं कि आतंक को पनाह देने की उसकी आदत है, वो नहीं गई और उसने पाकिस्तान को पनाह दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को ड्रोन दिए, पाकिस्तान को जहाज दी। अब व्यापारी ये कह रहे हैं कि हम टर्की का साथ नहीं देंगे और वो पाकिस्तान के खिलाफ तो थे ही, अब टर्की के खिलाफ हो गए हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं कि कितना विरोध है यहाँ पर व्यापारियों में? देखिए, व्यापारियों में तो बहुत विरोध है। अब जैसे हम लोगों को पता चला है कि एपीएमसी ने जो एप्पल आते थे वहाँ से वो बंद किए हैं। हम लोग की भी मीटिंग हुई है कि हम भी अभी टर्की का विरोध करेंगे ताकि टर्की से व्यापार ना हो। एकदम ओपनली पाकिस्तान को समर्थन किया है, जिसमें पाकिस्तान का आई डोंट थिंक कि कोई रोल होता है टर्की में इतना बिजनेस का। यहाँ 140 करोड़ की आबादी के साथ में हम लोग जितना प्ले करते हैं उसके सामने 10% भी बिजनेस टेक नहीं होगा पाकिस्तान का, तो भी वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हमें इसका विरोध करना ही चाहिए। सर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कोई देश का मार्बल नहीं लगाओ तो आपके घर में ये कोई दवाई नहीं है कि आप नहीं लोगे तो कल हार्ट अटैक से मर जाओगे। मार्बल दूसरा लगा दिया, ऑप्शन सब कंट्री में सब है, थोड़ा महंगा, उससे सस्ते भी हैं, महंगा भी है। और आपकी नेशन फर्स्ट वाली आपकी इंटीग्रिटी देश के प्रति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एप्पल और मार्बल में बहुत फ़र्क है। आदमी की कॉस्ट बेरर भी गिनी जाती है। हम माल यहाँ अलावा माल तो बेचना ही है। अभी भाई साहब ने बोला हमारे घर पे तो लगाने का नहीं है, कस्टमर आके मांग रहे। आज आप ये पॉलिसी के बाद में भी मांग रहे, कल भी माल आएगा। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से चालू करके कस्टमरों का इंटरेस्ट वहां तक होएगा तो इसमें इफेक्ट आएगा। लगता है कि टर्की ने अगर पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया है तो टर्की को हमारी पर्सनल इंडिकेटर बंद कर देना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमको ये बतावे कि भाई ये जो टर्की के जो मटेरियल है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लावे, जिससे कोई भी आदमी इंपोर्ट नहीं कर सके और लगाने वाले
जो भी एज कस्टमर है उनको भी सचेत होना चाहिए कि एज ये टर्की का मटेरियल है तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। साथ साथ में इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतने व्यापारी है, तो सबको ये रोकना या सबकी मंशा एक जैसी होना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें सरकार चाहे कि कहीं थोड़ा बहुत इसको रेगुलेट करे इंपोर्ट के टाइम पे, तो ये संभव है। मुंबई के विले पार्ले, सेंटा क्रूज, खार, ये एक हब है मार्बल के, और ये जो मार्बल की सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है वो इन्हीं इलाकों से होती है। इनका साफ तौर पर कहना है कि कस्टमर्स को भी अब तुर्की का जो मार्बल है उसे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर मार्बल नहीं खरीदेंगे तो ये मार्बल इंपोर्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जैसे कम होगा इसका सीधा असर तुर्की के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।